Able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Linux shell scripting, then AWS, GitHub, Maven, Apache Tomcat, Jenkins, Ansible, Docker, and Kubernetes. But I have told the sequence already, like Linux shell scripting. After that, we are going to discuss that Ansible and then GitHub. Then maybe this Maven and Apache Tomcat or AWS. So most probably interchangeably anybody will be started, anything will be started, like after this first three courses like shell scripting, then Ansible, then GitHub, then AWS, then Apache, Tomcat and Maven, then Jenkins. Okay, after that Jenkins, then Docker, then Kubernetes. So our whole course is going to be conducted this way along with the English class also. But these things I have explained in this particular pictorially I have given here. As I told, I think this picture already I have shown you in the first session maybe. So there are many developers. Developers are going to develop the code staying in different area, like developer 1 is present in the Bangalore area, developer 2 is present in the Pune area, developer 3 is working from the Bhubaneswar. These are the three different cities that these three developers worked together but staying in the different cities. That's why if they want to share their code in between them, then it was very, very difficult, because at that time some mailing concept was there. Suppose developer 2 is the team lead, then developer 3 and developer 1 both are going to send the code to developer 2. Then developer 2 was integrating all the codes and it was sending to the release manager to release that code or something after testing. But this thing was very problematic that time. That's why it was decided that we will keep our source code in a centralized location. That centralized location is nothing but the SCM, source code management tool. There are many number of source code management tools are there. One of them is GitHub. GitHub is a repository where developers will centrally deposit their code. Okay, they will send their code to a particular location where all the three developers have the access. Suppose developer 1 developed one code and developer 2 is wanting to add one functionality in the developer 1's code, then he is going to download the code from this SCM tool. Then he will add his new code inside that code. Understood up to this point? If developer 1 is having some 10 line of code, then he kept that code in the GitHub. Then developer 2 will pull that code, means download the code into his machine. Then he will add some functionality, like another 2 line. Then he will again upload that code into this GitHub. Then developer 3 is wanting to write some code into that. Then he will also do the same. So that in a single code, multiple people can work. Or suppose this developer 1 is developing one code, developer 2 is developing another code, developer 3 is doing another code. These are developing 3 files. They are writing the code, but in different files. So they all can store the code in a central repository called GitHub, so that everybody can see that code. Everybody can verify that code. Suppose developer 3 is a senior team member, developer 2 is a team lead, developer 1 is a junior team leader, junior teammate. Then developer 1 जो code करता है, suppose developer 2 छुट्टी के लिए 2 दिन तक गया, then developer 3 is going to verify that code.
तो ये इनको मेल पे नहीं मांगेगा, बोलेगा कि तुम डेवलपर 1 है, डेवलपर 1 please send your code to this location so that I will check that code and I will give my sign up, yes that code is good or not. Understood everybody? So SCM का समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. So it is a code repository where centrally all the people will store their code and access that code. Access is a word which is related to C मतलब access, दिखेंगे, कोई रखना, स्टोर करना मतलब उसमें अपलोड करना, और सी मतलब दिखना मतलब डाउनलोड करना, और डायरेक्टली यही कोड को भी तुम गिटहब के अंदर दिख सकते हैं। नहीं तो तुम अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यू विल डाउनलोड द कोड इनटू योर मशीन, then do the change, then again upload the code into GitHub. Again, GitHub is also giving a permission to change also. GitHub के अंदर डायरेक्टली कोड चेंज कर सकते हैं। एक मिनट है, हेलो क्लास कोच, क्लास कोच। अच्छा, so this is the thing that I have told. One is, next is code review. तो यहाँ पे जो कोड रखते हैं ऐसे आजू बाजू कोड मतलब फालतू कोड कोई रखते नहीं। The developer 1 developed one functionality, then he will test it. Developer 2 will develop another functionality, he will test it. क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। Okay, so these are the developer 1, developer 2, developer 3. These are the 3 developers will develop their code. Clear? 3 developers develop their code. As soon as they are developing their code, they always prefer to test it. That type of test is called unit test. मतलब ये एक फंक्शन बनाया, उसको टेस्ट कर दिया, सो टेस्टेड कोड को इधर डालते हैं। ऐसा नहीं कि फालतू मतलब कोई भी कोड डेवलप कर दिया इसको डाल देंगे इधर, नो। ये अपने आपके पास कोड को टेस्ट करके जब उनके तरफ से काम फंक्शनैलिटी प्रॉपरली करता है तो उसको लेके गिटहब में डालते हैं। तो गिटहब में जो रहता है एक्चुअली रेडी कोड मतलब टेस्टेड कोड, दोज हु आर टेस्टेड बाय द डेवलपर्स, बट अगेन द टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय द test engineer, that will be the different part, but the developers will do the small test, minimal test or any unit test, then they will keep the code into the GitHub. Then what to do, ये जो कोड को इधर रख दिया, यहाँ पे कोड रिव्यू होता है। कोड रिव्यू का मतलब क्या है कि ये कोड का लाइन बाय लाइन टेस्टिंग होता है। यहाँ पे कोई मतलब डुप्लीकेट कोड है क्या, कोई सेम फंक्शनैलिटी को डेवलपर 1 लिखा, डेवलपर 2 भी सेम फंक्शनैलिटी लिखा, सो कहीं पे कोड रिडंडेंसी है क्या। कोड का एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि मैं बोल दिया ना, कुछ लोग बोलते हैं ही गो टू कटक, बट समझने वाला को समझ जाता है, राइट है ना। ही गो टू कटक कुछ लोग यूज करते हैं या नहीं, एक्चुअली है ही गोज टू कटक, बट ही गो टू कटक उसमें समझने वाला समझ जाता है या नहीं, बताओ, यस और नो। Yes, sir. बट यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, तो उस टाइप का गलती को यहाँ पे कोड रिव्यू के टाइम पे पकड़ा जाता है। गेटिंग मी? सो लाइक ही वेंट टू कटक, नाउ नहीं तो ही गोज टू कटक, दैट इज गुड आइडिया। तो यहाँ पे कोड रिव्यू के टाइम पे वो छोटा मोटा मिस्टेक सब पता चलता है। क्या है कि कोड स्टैंडर्ड कोई फॉलो नहीं किया। मैंने कल अगर नाचने के लिए मुझे कोई बोलेगा, मैं कल पेंडल पे जाके नाच सकता हूँ। कोई लुंगी डांस मारेगा, मेरे को लुंगी डांस का प्रॉपर सीक्वेंस पता है, मैं लुंगी डांस नाच सकता हूँ, बट उस टाइप का कस्टम अगर नहीं पहनूंगा मजा नहीं आएगा, राइट। उसमें लुंगी होना चाहिए। कल मैं अगर पेंट में जाके लुंगी डांस मारूंगा तो प्रॉब्लम होगा। सो लाइक दिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक प्रिस्ट जो कि पूजा करते हैं, पुजारी बोलते हैं, उसको मंत्र पता है, वो जाके जगन्नाथ के पास मंत्र पढ़ सकता है, बट उसको बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण है तो तू एक जनेऊ डाल के आ, जनेऊ डाल के आओगे तो तुम अच्छा रहेगा। तो दैट इज क्वालिटी टाइप का चेकिंग। सो कोड रिव्यू मतलब यहाँ पे कोड क्वालिटी चेकिंग होता है। सो कोड क्वालिटी के चेक सोनार क्यूब करके एक टूल है जो कि कोड क्वालिटी चेक करता है। इसी सोनार क्यूब में अगर सेलेनियम वगैरह, सेलेनियम होता है कि टेस्ट केस ऑटोमेशन, 50 टेस्ट केस, लेट से मेरे को 50 टेस्ट करना है,
तो उसको 50 टेस्ट करने के लिए 50 टेस्ट केस लिखा होता है। एवरी टेस्ट केस के अगेंस्ट टेस्ट स्क्रिप्ट रहता है, और टेस्ट स्क्रिप्ट का रिजल्ट क्या होना चाहिए वो भी उसके अंदर रहता है। जब मैंने टेस्ट केस को रन करूंगा, अगर मेरा रिजल्ट के साथ मैच हुआ सही है, रिजल्ट के साथ मैच नहीं हुआ गलत है, इसको बोलते हैं टेस्ट केस रिव्यू। तो टेस्ट केस रिव्यू को इसी सोनार क्यूब के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो ये जो सोनार क्यूब इज ए टूल which is responsible for checking the test case review as well as code review। तो यहाँ पे जो डेवलपर जो छोटा मोटा टेस्ट केस that was not sufficient, that's why यहाँ पे जो टेस्ट केसेस लिखा हुआ है या कोड स्टैंडर्ड जो फॉलो करने के लिए बोला गया है, इसमें सोनार क्यूब क्या करता है, वो सबको चेक करता है। क्लियर क्लियर? मैंने अभी मैनुअल ओके। तो उसके बाद बिल्ड प्रोसेस, ये टेस्ट केस हो गया। उसके बाद बिल्ड होता है। बिल्ड क्या होता है ना, मल्टीपल, हम लोग भी इधर भी बिल्ड सिखाएंगे, लिनक्स में भी बिल्ड सिखाएंगे, बिल्ड कैसे होता है। तो मल्टीपल फाइल को उठा के एक पैकेज बना दिया जाता है ताकि इट विल वर्क एज ए सिंगल यूनिट। क्या होता है, मैंने अगर कल देखो मेरे कल कोई 50 स्टिक दे दिया, 50 स्टिक, छोटा छोटा स्टिक, मैंने 50 स्टिक को ऐसे हाथ में लेके जा रहा था। कुछ समय के बाद चलने के बाद एक स्टिक थोड़ा मतलब अनबैलेंस होके कोई गिर गया, एक स्टिक गिरता है तो दूसरा स्टिक के ऊपर इंपैक्ट आता है, सब स्टिक गिर जाता है एक टाइम पे। बट सोचो मैंने इसी सारे स्टिक को दो साइड में एक बांध लूंगा, राइट साइड में एक गांठ डाल दूंगा, लेफ्ट साइड में एक गांठ डाल दूंगा। गांठ मतलब उड़ीसा में गंठी बोलते हैं, मतलब इट जे धागा में उसमें बांध लेते। जब मैंने बांध लेते हैं उसको तो वो गिरने का चांस नहीं है। दैट मीन्स आई मेड इट इन ए सिंगल पैकेज। और एल्स मैंने वो सबको एक बैग में डाल देता। लेट्स से मुझे 50 एप्पल लेके जाना है, अच्छा मैं 50 एप्पल को अलग अलग पकड़ पाऊंगा क्या? नो राइट। बट वही 50 एप्पल को मैंने अगर एक बैग के अंदर डाल दूंगा, आई कैन इजीली कैरी दैट बैग। So that thing is called packaging. So once the code, these are the developers have developed around 70 number of code, let's say 7 number of files. तो 70 फाइल को मैंने एक ऐसे खुला लेने से अच्छा उसको एक पैकेज बना दूंगा। दैट पैकेजिंग प्रोसेस को बोलते हैं बिल्ड प्रोसेस। ओके, यानी यहाँ पे SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट, देन कोड रिव्यू, यहाँ पे बिल्ड इज ए प्रोसेस, कोड रिव्यू इज ए प्रोसेस, SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ कोड इज ए प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ कोड करने के लिए कोई एक्लिप्स में जावा कोड लिखते हैं, कोई SQL डेवलपर को यूज करके ओरेकल कोड लिखते हैं। सो दे विल यूज द डिफरेंट। सो यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं डेवऑप्स इंजीनियर का। जहां पे डेवऑप्स इंजीनियर का काम है मैंने उसको ऐसे स्काई ब्लू कलर देके रखा। तो SCM को फुलफिल करता है गिटहब करके टूल, कोड रिव्यू को फुलफिल करता है सोनार क्यूब करके एक टूल, बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उसके लिए मावेन इज ए टूल व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट ए पैकेज अगेंस्ट द जावा कोड। जावा कोड के लिए हम लोग मावेन यूज करते हैं, पाइथन कोड के लिए हम लोग पाइबिल्डर यूज करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स responsible for the build of the code। build का मतलब packaging। okay, then once the package is created, because ये टेस्टिंग हो चुका है, तो ये पैकेज को बाई चांस फ्यूचर में कभी यूज करने का अगर चांस है, कंपनी बोलता है इतना तो काम कर चुके हैं, इसको रख लो कहीं जगह में, एक जगह में, ताकि अगर हमको इस टाइप का कुछ भी सेम फंक्शनलिटी आएगा हम लोग को इतना लेबर करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है इस 70 नंबर ऑफ कोड से 50 कोड हमको कुछ जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे दो पैकेज बनाते हैं, ये 50 कोड जो कॉमन कोड और 20 कोड को अनदर कोड, तो 2 पैकेज बना के रखा और यहाँ पे जो कॉमन पैकेज को इधर रख देते हैं। तो कभी कभी फ्यूचर को सोच के, ओके, फ्यूचर को कंसिडर करके हम लोग क्या करते हैं ना, इतना अगर मेहनत किए, यहाँ पे पैकेज तो बन गया, पैकेज को यूज करने से पहले पैकेज को कुछ जगह में उसको स्टोर करते हैं। यहाँ पे कोड रिपोजिटरी था, यहाँ पे पैकेज रिपोजिटरी।
गेटिंग मी? डिफरेंस समझ पा रहा है? GitHub इज ए कोड, सोर्स कोड रिपोजिटरी, बट यहाँ पे बिल्ड जो पैकेज को रखा हम लोग। गेटिंग मी? सो जिस जहां पे पैकेज रखते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी। इस पैकेज को बोलते हैं आर्टिफैक्ट, या आर्टिफैक्ट को जहां पे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी। तो ये आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी बहुत है, वन ऑफ देम इज नेक्सस। नेक्सस इज ए आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी टूल। Getting me? So concept is development, concept is SCM, code review is a concept, build is a concept, artifact repository is a concept, but GitHub is a tool which is supporting SCM. SonarQube is a tool which is supporting code review. Maven is a tool which is supporting building or packaging. Nexus is a tool which is supporting data, but artifact storing, artifact repository. Clear? Everybody abhi tak clear? Yes, sir. Yes, sir. Now once the code is built, उसको हम लोग एक जगह में रख दिया और उसको हम लोग क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। लॉन्च बोले तो क्या करते हैं ना, पहले मैं बहुत सारे पिक्चर इधर नहीं बनाया, मैं पहले प्री प्रोडक्शन में टेस्ट करूंगा। प्री प्रोडक्शन इज ए एनवायरनमेंट where we are going to again test the code as a whole. That pre-production environment is nothing but it is as the production environment. But production environment में end user काम करेंगे, end user use करेंगे उसको, but pre-production को हमारे कंपनी का लोग कुछ यूज करके उसको टेस्टिंग करेंगे 1 महीने तक। 1 महीने देखेंगे कुछ लैकुना है क्या, बिकॉज एंड यूजर के पास एक बार पहुंच गया, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है, लेट्स से अभी मैंने पहले बार के लिए myntra.com में लॉगिन किया और मेरे को पता नहीं कि myntra.com बहुत अच्छा है, बट मेरे दुर्भाग्य है कि उसी दिन myntra.com ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं जिंदगी में कभी myntra.com के बारे में मेरे कोई भी बोलेगा ना, मैं मना ही करूंगा, बिकॉज हमारे पास अमेज़न अच्छा है, फ्लिपकार्ट अच्छा है, मैं कभी myntra.com जाऊंगा ही नहीं। तो ऐसे होता है। तो ऐसे सोचो कि कोई एंड यूजर के पास छोटा मोटा गलती दिखाई गया, देन वो यूजर को हम लोग लॉस करेंगे। इसीलिए छोटे मोटे इशू को भी टेस्ट किया जाता है प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। फाइनली उसको लेके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डालते हैं जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, जहां पे हम लोग जाके कोड जो रिपोज जो है ना, ये जो पैकेज, ये पैकेज को लॉन्च कराता है। एक्चुअली पैकेज क्या होता है? .jar .var वगैरह, वो वार फाइल को लेके लॉन्च करते हैं। जहां पे लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। क्लियर? वो प्रोडक्शन सर्वर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो इस एप्लीकेशन को, जैसे कि मैं बोला आरोग्य सेतु इज एप्लीकेशन, गूगल पे इज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को जिस प्रोडक्शन सर्वर में लेके डालते हैं, डालने के बाद उसी प्रोडक्शन सर्वर को बोला जाता है एप्लीकेशन सर्वर। क्लियर? क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन लोड हो गया। देन एक एप्लीकेशन सर्वर था, दूसरा एप्लीकेशन सर्वर डालते हैं। क्यों? मैं कभी कभी ये एप्लीकेशन सर्वर सपोज करप्ट हो गया, 1 घंटे तक अगर ये ऑफ नहीं हुआ, तो वो टाइम पे जो लोग flipkart.com के ऊपर मतलब ये करे होंगे, विश्वास करके कुछ चीज ऑर्डर किए होंगे, अगर 1 घंटे तक वो लोग ट्राई कर नहीं मिल रहा है, दूसरे घंटे भी ट्राई नहीं करेंगे, तीसरा घंटे भी ट्राई नहीं करेंगे, दैट्स द रीजन। और उसके बाद बोलेंगे flipkart.com बेकार। दैट्स द रीजन टू मेंटेन दैट failover, टू मेंटेन दैट हाई अवेलेबिलिटी। ये सर्वर जब डाउन होता है इमीडिएटली अनदर सर्वर ऑफ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फेल ओवर सर्वर। वन इज ए फेल ओवर सर्वर फॉर अनदर, मतलब एक सर्वर अगर डाउन हुआ, immediately within a fraction of second another server is going to give you the support so that end users are not going to be impacted. तो सोचो कि ये पुणे लोकेशन पे, ये मुंबई लोकेशन पे ड्यू टू सम फ्लड महाराष्ट्र इम्पैक्ट आ गया। अभी इसको अगर बैंगलोर में रखे होंगे तो इट इज प्रॉब्लम, इट विल बी बेनिफिट, राइट? बिकॉज महाराष्ट्र में टोटली फ्लड, देखो एक टाइम आया था 2016 या 15 को, पूरा चेन्नई
पूरा चेन्नई फ्लड हो गया था, चेन्नई एंड केरला कोई तो ऐसा है, पूरा फ्लड हो गया था। ओडिशा का सपोर्ट उसको बहुत मिला है। मेरे टीम पे मैं एक स्प्रिंट करके एक एप्लीकेशन में काम कर रहा था आईबीएम पे, वो टाइम पे 7 मेंबर वर वर्किंग इन ए टीम। आउट ऑफ 7, 5 was from Chennai, 1 is from this Hyderabad, another is for me. So totally 7. These 5 people were not मतलब able to work, और 1.5 महीना तक हम हैदराबाद में सपोर्ट किए उसको। हमको अराउंड 1.5 लाख रुपया बेनिफिट मतलब ये मिला था, बेनिफिट मिला था, अवार्ड मिला था कि तुम दोनों बहुत सपोर्ट किया अच्छे से। अमेरिकन लोग भी सुने ये बात को कि हाँ तुम लोग बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखो, अगर ये चेन्नई, ये पूरा महाराष्ट्र में पुणे एंड मुंबई पूरा करप्टेड हो गया, दोनों सर्वर पानी घुस गया उसके अंदर, ऑब्वियसली गला गया। तो ये हैदराबाद में रहने के कारण ये भी सपोर्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड फेल ओवर। 1 इज फेल होता है, अनदर इज उसको ओवरकम करता है। अनदर थिंग, कभी कभी ये दिस इज वन सिनेरियो ड्यू टू व्हिच हम लोग मल्टीपल सर्वर रखना चाहिए। सेम एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में रखें। अभी another cause is that, let's say this is the server which has the capacity 16 GB RAM, ये application server 1 का 16 GB RAM and 10 TB hard disk, plus it is a 2-core processor, and it was working fine till 10,000 people were accessing. After a while 10,000 1500 लोग हो गए, तो यहाँ पे ये अभी जैसे पहले अच्छा काम कर रहा था, अभी अच्छा काम नहीं कर रहा। कारण क्या है ना, एक ही बंदा को दिया गया काम मल्टीपल चीज, मतलब एक ही सर्वर के ऊपर 10,000 1500 10,000 प्लस 1500 लोग इसके डिपेंडेंट कर रहे हैं। 10,000 लोग तक बढ़िया सपोर्ट कर रहा था, अभी 1500 लोग बढ़ने के कारण ये बहुत स्लो हो गया। कंपनी क्या करेगा, अरे एक काम करते, कुछ लोग जो लोग इधर आते हैं 10,000 लोग के बाद दूसरे पर जो भी लोग आएंगे उसको एप्लीकेशन सर्वर 2 को दे देंगे। देखो यहाँ पे कोई सर्वर खराब नहीं हुआ, यहाँ पे इस सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, स्लो हो रहा है, परफॉर्मेंस फास्टर कम हो रहा है। इसीलिए जो लोग 10,000 के बाद आएंगे उसको अनदर सर्वर को डाइवर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक डब्बा में जब लोग भर जाते हैं, दूसरे डब्बा में इंजन जो ट्रेन का दूसरा डब्बा रिजर्व होना शुरू होता है। दिस इज वन कारण, मतलब एक ही डब्बा फुल होगा दूसरे डब्बा को जाएंगे, दूसरा डब्बा फुल होगा तीसरा डब्बा जाएंगे। पहले रेलवे में ऐसे चल रहा था, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, अभी क्या, मेरे को जिस सीट अच्छा लगता है मैं अभी बुक कर रहा हूँ। पैरेलली जब 3 यूजर आएंगे, यहाँ पे एक बंदा, इधर एक बंदा, इधर एक बंदा, अनदर 3 बंदा आएगा, इधर एक इधर एक इधर एक। देखो जब 6 बंदे हैं 2 लोग है, जब 9 बंदे आएंगे 3 आएंगे, जब 10th बंदा आएगा इसमें, 11th बंदा इसमें, 12वां बंदा इसमें। तो दैट मीन्स जब ऐसे लोग आते हैं इसको बोलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द यूजर्स अमंग देमसेल्व्स पैरेलली, इवनली। इसको बोलते हैं इवनली। इवनली मतलब ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि 10 चॉकलेट लेके आया, मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, 3 को 3 दिया और एक बच गया, उसको मैंने तुनी को किसको दूंगा तो वो रोएगा, इसको फेंक दिया। दैट मीन्स 3 अगर कोई छोटे बच्चा है मैं उसको दे दूंगा, नहीं फेंकने से अच्छा सबको समझा कर मैं छोटे बच्चों को चॉकलेट देता हूँ। दैट मीन्स सब में 3 पड़ा, एक को 4, ठीक है ना, फेंकने से अच्छा हमारा भाई तो खाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब 13 में लोग आएगा यहाँ पे आएगा, 14 में इधर, 15 में इधर, 16th इधर, 17 इधर, 18 इधर, 19 इधर, 21 ऐसे ऐसे। क्लियर और नॉट? एवरी टाइम these 3 servers will distribute the users among themselves. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? हमारा एक लोड बैलेंसर कॉन्सेप्ट आएगा, यूजिंग दैट लोड बैलेंसर ये सब होगा। क्लियर? एप्लीकेशन सर्वर मल्टीपल 2 कॉज के लिए होता है। वन इज हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा इज फेलोवर। गेटिंग मी? मतलब यूजर्स विल नॉट बी इंपैक्टेड जब मल्टीपल यूजर होंगे। तो ये सारे हो गए एप्लीकेशन सर्वर।
देखो मैं अभी मैनुअल का चेन चला रहा हूँ, मैनुअल 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 एवरीवेयर मैनुअल। तो यहाँ पे जितने सर्वर बढ़ रहा था मैनुअली हम लोग सर्वर को ऐड करते थे। एवरी सर्वर को मॉनिटर करने के लिए 2-3 लोग को मतलब 2-3 सर्वर को मॉनिटर करने के लिए 1-2 बंदे काम करते थे। ऐसा अगर 100 सर्वर है, 100 सर्वर को मैनेज करने के लिए हम लोग 10 लोग को रखना पड़ता था, बिकॉज एवरीथिंग वाज मैनुअल। ओके, देन यहाँ पे वही टीम बैठ के मॉनिटर करते थे बैठ के। तो यहाँ पे ग्राफर नहीं था वो टाइम पे, मॉनिटरिंग करते थे वो टाइम पे इंडिविजुअली। यहाँ पे एक लिनक्स सर्वर रहता था, यहाँ पे एक यूजर बैठता था, ये बैठ के 2-3 सर्वर को मॉनिटर करता था कि कौन सा सर्वर एप्लीकेशन डाउन हुआ, क्या नहीं क्या हुआ, अगर ये डाउन है उसके लिए क्या करेंगे, उसका जो सब यूजर्स है तो ये सारे यूजर को ईंधन को डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है तो मैं इसको कितना दूं, इसका कितना दूं, इस सर्वर का 16 GB RAM है, इस 10 GB RAM है, तो मैंने 16 GB वाला RAM को ज्यादा लोड दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह डिसाइड करके इस यहाँ पे सेशन मैनेजर को अकेला हैंडल करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था यूजर को। यहाँ पे एक बंदा बैठ के मॉनिटर करता था। सो अगर ये डाउन है तो पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ दीज 2 सर्वर्स आर लोडेड, मोर लोड ये दोनों पे पड़ रहा है। अभी इनका हेडाक होगा कैसे इस सर्वर को जल्दी जल्दी ऑफ करवाएगा, या इस सर्वर की जगह में अनदर सर्वर को रखेगा ताकि इस सर्वर से जो लोड पड़ रहा है लोड थोड़ा इस सर्वर को फिर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये काम इनका, बट ये अकेला नहीं करता, ये अलग लोगों को यूज करता था, टिकट रेज करता था, अलग लोगों के पास भेजता था, सपोर्ट टीम को भेजता था, सपोर्ट टीम there is some problem in this servers, it was expecting 3 server but 1 server is down, so can you please immediately arrange another server and load the application into that so that other people will be connected to that system वगैरह वगैरह। ये सब ये लोग सब मैन्युअली करते थे। क्लियर? यहाँ पे प्रॉब्लम होता था, मैन्युअली करने के लिए टाइम जाता था, ज्यादा लोग को पैसा देना पड़ता था। यहाँ पे नेक्सस का एक अदर इंजीनियर बैठता था, इधर माँ बहन के लिए अलग इंजीनियर बैठता था, कोड रिव्यू के लिए एक अलग इंजीनियर बैठता था, सोनार क्यूब वाला, गिटहब के लिए अनदर इंजीनियर बैठते थे। दीज आर द डिफरेंट टूल्स। ये टूल्स का जो एक्सपर्टाइज करके बंदे बैठ के इधर काम करते थे। यहाँ पे प्रोडक्शन सपोर्ट, एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर, ये सब इधर यूज होते थे। तो मल्टीपल सर्वर के लिए मल्टीपल यूजर प्लस हर एक के लिए काम था, प्रॉब्लम। और पहले मैनुअली सब सर्वर को खरीदा जाता था, मतलब सर्वर को जाकर खरीदते थे, बॉम्बे शहर से उसको लेके रखते थे काम, पुणे शहर से, बेंगलोर शहर से खरीद के लेके मैनुअली, उसको बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस सर्वर। क्या बोलते हैं? ऑन प्रीमाइसेस सर्वर। मतलब कंपनी ने उनका रिक्वायरमेंट जो भी है उसके लिए एक एक सर्वर को खरीद के रखता था। हर एक सर्वर का कॉस्ट अगर 2 लाख होता है, 100 सर्वर के लिए कितना लगेगा पता है? 2 करोड़ रुपया खर्च करते थे सर्वर में। कल अगर इमीडिएटली ऐसा एक सिचुएशन आया, मैंने अभी यहाँ से नीचे जाता हूँ, कल ऐसा एक सिचुएशन आया मेरे को, जनवरी 26, दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, डिफरेंट टाइम होता है, जो टाइम पे लोग थोड़ा नया ड्रेस, नया सोना खरीदना चाहते हैं। तो लोग अलग टाइम पे जो खरीदते नहीं, ये फेस्टिव सीजन में ज्यादा खरीदते हैं। मैं भी खरीदने का कारण 2 हो सकता है। 1 इज वो टाइम पे चीजों सस्ता मिलता है खरीदते, या लोग फेस्टिवल के लिए नया पहनने के लिए खरीदते हैं। दैट इज इमोशनल अटैचमेंट विद द फेस्टिवल। तो देयर आर डिफरेंट रीजन due to which more people are wanting to access that application server to get their object, get their anything, get their products. तो वो टाइम में 100 से सीधा 1000 हो जाता है सर्वर, क्योंकि जब जो टाइम में 1 लाख लोग ये तीनों सर्वर को एक्सेस करते थे, सडनली 10 लाख लोग हो जाता है जिस दिन ऑफर आता है। अच्छा, ऑफर के टाइम पे 10 लाख लोग यही तीनों को जब एक्सेस करेंगे, these servers are going to be down because only 1 लाख सर्वर के लिए ये 3 यूजर के लिए 3 सर्वर था, 30,000। अभी 10 लाख लोग आ रहा है, मतलब 10 टाइम बढ़ रहा है, तो ये सर्वर तो फट जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा, आग भी लग जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, प्रेशर जो ज्यादा हो जाता है, क्या होता है ना, स्पार्क कर जाता है, फट जाता है, ब्लास्ट करता है। ये भी होता है, प्रेशर जो प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ने में ब्लास्टिंग भी होता है।
हीट हो जाता है ज्यादा इंजन। तो इधर क्या करते हैं ना, सडनली अनदर पकड़ो 10 गुना बढ़ गया, मतलब 3 सर्वर तक कितना होना पड़ेगा, 30 सर्वर होगा, राइट और नॉट? 30 सर्वर चाहिए नहीं? यस सर। अच्छा, 27 सर्वर, 27 नंबर ऑफ सर्वर चाहिए। कब चाहिए? परसों चाहिए। क्या 27 सर्वर को खरीद के उसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रखना इतना इजी चीज है? विद इन 3 days कैन इट बी पॉसिबल? नो, राइट? नो सर। No, sir. No, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। कंपनी कैसे भी करके दिखा कि हम लोग के पास जरूरत पड़ता है तो खरीद लेते, एक बार खरीद लेते हैं। जैसे कि गांव में कोई फंक्शन होता है, एक बाम्बो वाला क्या करता है, जो कैटरिंग वाला हंडी वंडी खरीद के रखता है, डेक्ची बोलते हैं उसको, राइट? डिस्क बोलते हैं। कैटरिंग वाले के पास कढ़ाई मिलता है, डिस्क मिलता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग मेरे पास रखने में तो लेंगे पर। बट एक बंदा खरीद सकता है क्या? बंदा बोलेगा मेरे को शादी आता है मेरे घर पे, मैंने 10 डिस्क, एक 2 बड़ा कढ़ाई, जाली, सिगड़ी, गैस टंकी 2-4 खरीद के रखूंगा, नेक्स्ट 4 साल में एक शादी होगा, क्या मैंने ऐसे खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, बिकॉज ये मेरा कभी कभी आता है। तो ये जो बंदे को अभी 100 सर्वर चाहिए था, सॉरी 30 सर्वर, 27 सर्वर न्यू, अभी लोग खरीद, अगर बाई चांस खरीद भी लिया, क्या सेल्स बार बार आता है? नो, सेल्स नहीं आता बार बार। सेल्स कभी 2 महीने में एक बार, दुर्गा पूजा, उसके बाद दशहरा, सॉरी दिवाली, नेक्स्ट इज न्यू ईयर, ऐसा 4-5 पर्व आएगा। जनवरी 26, अगस्त 15, गणेश पूजा, these are 6 to 7 festivals coming in Maharashtra and all over India commonly। ये कॉमन फेस्टिवल के टाइम पे ज्यादा ये उठता है, क्या बोलते हैं, सेल्स आता है। तो मैंने 3 दिन तक सेल्स रखने के बाद, व्हाट अबाउट अदर 2 months? क्या मैं 2 महीने के, ये 2 महीना क्या करूंगा ना, सर्वर अगर खरीद लिया भाई, अगर तुम सर्वर कोई खरीदते हैं, वो सर्वर को चलाते नहीं, उस सर्वर के अंदर फंगस हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, फिर चलाना पड़ेगा। अच्छा, चलाने के लिए उसको एसी चाहिए, उसके लिए करंट चाहिए। अच्छा, मेरे को वो 27 सर्वर को जरूरत नहीं, फिर भी मैंने अननेसेसरीली उसको चलाना पड़ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है नहीं इसके लिए। बेच भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज 1 का 2 लाख देके खरीदा मैंने, बेचूंगा तो उसको 30,000 में भी कोई नहीं देगा, बिकॉज मैंने उसको सेकेंड हैंड हो गया। सो जब चाहे उसको हटा भी नहीं सकते। दिस इज द रीजन you need to give the, you need to pay the maintenance charge for that. Am I right? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो ड्यू टू which अभी हमको, हम लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे। देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड रेंटिंग। अच्छा, घर पे हमारा जो शादी वादी होता है, हम लोग जो कल कढ़ाई डिश वगैरह लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैटरिंग से लेते रहे। कैटरर को बोलते हैं भाई मेरे को 10 सिगड़ी चाहिए, सॉरी 2 सिगड़ी चाहिए, 1 कढ़ाई चाहिए, 15 डिश चाहिए, उसके बाद उसका ढक्कन चाहिए, पैदा करके लाते हैं, हमारा शादी फंक्शन खत्म, उसके बाद 2 दिन के बाद धो धा के उसको ले देते। तो 2 दिन का चार्ज हम लोग उसको पे करके 1500-1600 रुपया में हम लोग लेके आ गए, हमारा काम खत्म हो गया, उसको दे दिए, जब चाहे लाए, जब चाहे हटाए, बिकॉज ऑफ द रेंटिंग कंसेप्ट, राइट और नॉट? Right, sir, right. So this concept is supported by the clouds nowadays, that is called, we are going to cover that Amazon Web Service, AWS, which is going to give us this number of servers, जब चाहे मिलेगा, जब चाहे हटाएंगे। तो इस AWS को बोलेंगे मेरे को अभी 30 सर्वर से 3 सर्वर काम में आता है, ले तुम्हारा 27 सर्वर, within a fraction of second he is going to terminate these 27 servers। आपका हेडाक अभी फिर से वही 3 सर्वर चल जाएगा। तो एक बड़ा हेडाक निकल जाता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जब ये AWS आया, जब ये क्लाउड सर्विस आया, पहला कंपनी होता है क्लाउड सर्विस का अमेजन। अमेजन इज द कंपनी जो पहले बुक बेचता था, उसके बाद अमेजन कंपनी वाज स्टार्टेड फ्रॉम ए
बुक सेलर कंपनी, मतलब ऑनलाइन बुक सेल करेगा, ऑनलाइन बुक। आफ्टर दैट ये जो हमारा अभी ई कॉमर्स हो गया, वो पैंट शर्ट लिपस्टिक बेच रहा है, अभी कौन बेच रहा है? अमेजन बेच रहा है। सो अमेजन बिकेम ए डिलीवरी कंपनी और कुछ नहीं। अमेजन अभी ई कॉमर्स कंपनी बोलते, तो इट्स काइंड ऑफ डिलीवरी, वो एक से लेगा वाई को बेचेगा, इसका काम यही है, बीच में वो कुछ कमीशन रख के बेचता है। देन अमेजन देखा कि मैंने बुक भी बेचा, कपड़ा बेचा, लिपस्टिक बेचा, सब कुछ बेचा, अच्छा मैंने कुछ सर्विस क्यों नहीं बेचूंगा? फिर वो क्या किया, उनके पास लाखों लाखों सर्वर वो खुद खरीद लिया, खरीद के लोगों को बोला कि भाई तुम जिस चीज को खरीदते थे पहले, तुम मेरे से रेंट पे लो, तुमको जब चाहे रेंट पे मैं दूंगा, जब चाहे हटाओगे, विदिन ए मिनट मुझे कॉल कर दो, या कोई तुमको मैंने प्रोविजन देता हूँ, तुम जाके टक 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 का टिक टिक मार दो, टिक 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 बटन बटन दबाओ। आपके पास 100 सर्वर था, 99 सर्वर को आप डिलीट करना चाहते हैं, सबको सिलेक्ट ऑल करो, एक को डिसलेक्ट करो, 99 सिलेक्ट हो गया, उसके बाद डिलीट बटन दबाओ, सारे सर्वर डिलीट। तो ये कैसे होगा मैं बताऊंगा AWS क्लास में, बट इतना सोचो कि बिकॉज ऑफ दिस Amazon वेब सर्विस you can buy n number of servers for your use, you can delete n number of server if you are not using within a fraction of a second, so that you can save the maintenance cost and save the headache cost. Clear? ये Amazon कंपनी आने के बाद आया Azure, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया Azure। माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट कंपनी के बाद गूगल कंपनी बनाया GCP, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर सर, GCP। ओके, देन अनदर आया अलीबाबा, वो जाकमा है ना, जाकमा चाइना का, वो भी एक बनाया अलीबाबा। दीज आर द 4 पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर who are giving us infrastructure as a service। मेरे को लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, मैंने लैपटॉप डेस्कटॉप खुद नहीं खरीदूंगा, मेरे पास अगर कोई मेरा पापा का लैपटॉप है बहुत पुराना, मैंने अभी 16 GB रैम मेरे को खरीदने जरूरत नहीं है, मेरा का पापा का लैपटॉप पर 2 GB रैम है, ओनली 10 GB हार्ड डिस्क है, फिर भी मैंने इसी लोगों का, ये अमेज़न को रिक्वेस्ट करके उनका 16 GB रैम 10 TB हार्ड डिस्क वाला सिस्टम को यूज कर सकता हूं। मेरा पिताजी का पुराना 10,000 वाला लैपटॉप को पकड़ के, 10,000 वाला लैपटॉप को पकड़ के 10 लाख वाला लैपटॉप को मैंने यूज कर सकता हूं, जस्ट पेइंग 10-15 रुपीज पर डे टू दिस पर्टिकुलर Amazon कंपनी। इट इज गुड या नॉट? और सर, yes sir, good sir, obviously it's good, right? That's the reason हम लोग इसके पास पहुंचेंगे। सो हमारा कोर्स पे जो क्लाउड हम लोग पढ़ाएंगे, ये जो पहले जो आया था Amazon, उसी को यूज करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट जो Amazon आया, अच्छा यहाँ पे अभी सर्वर यूज करना इजी हो गया। नाउ ये जो प्रोसेस को होता, अभी मैंने यहाँ पे छोड़ता हूँ इसको, यहाँ से फिर से आता हूँ ऑटोमेशन की तरफ से। जो मैन्युअली करने के लिए जो टाइम जा रहा था, यहाँ पे इंजीनियर बैठ के इसको कोड को पुल करना, यहाँ पे कोड रिव्यू के लिए एक स्क्रिप्ट को रन करना, फिर इसको पैकेज बनाने के लिए अनदर यूजर इन्वॉल्व होना, यहाँ पे मल्टीपल यूजर होते, दैट्स ओके, बट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट टीम, बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन स्कैर्सिटी। ये इन पे कोलैबोरेशन नहीं था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द कोलैबोरेशन these people were failed to deliver the product or deliver the software in the right time, और ये लोग को ज्यादा टाइम भी ले रहे थे। ये सब को दिख के कोई डेवलपर जो भी हो, जेनकिंस करके एक CI/CD टूल आया। CI/CD का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, और सॉरी कंटिन्यूअस डिलीवरी, इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी। कंटिन्यूअस बोले तो कंटिन्यूअसली
मतलब आज सुना देखो, यहाँ पे जब कोड आता है, यहाँ पे कोई क्या इधर यूजर उसको पुल करता था, इधर के यूजर नहीं रहेगा। CI/CD इज ए टूल, दैट CI/CD इज ए कंसेप्ट, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिलीवरी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का नाम होता है जेनकिंस। लाइक जेनकिन देयर इज ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड बाम्बो, देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड गिटलैब। ओके, getting me? So Bitbucket, these are different CI/CD tools. So one of them is called Jenkins. Jenkins is a very powerful tool. ये टूल को बैठ के एक ही दो बार कोई भी प्रोजेक्ट को ले, कोई एक यूजर बैठ के उसको सेटिंग करना, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद as soon as the code is coming to this SCM or GitHub, immediately that CI/CD is a tool. Again I am telling, it's a tool. यहाँ पे कोई लोग बटना जरूरत नहीं है, वो टूल क्या करेगा, कोड को पुल करके इसको भेज देगा। It will pull the code and it will send that code. So as soon as that SCM is getting code or that GitHub is getting the code, immediately Jenkins will pull and push to this particular SonarQube. SonarQube will immediately do the test. Then Jenkins will tell, hey SonarQube, have you tested properly? So give me the report. So ये Jenkins इस रिपोर्ट को देख के इमीडिएटली रिएक्ट करेगा कि अगर ये रिपोर्ट उनका 90% पास होता है, जो रूल इधर लिखा होता है, तो वो 90% अगर पास हो गया, इमीडिएटली इट विल ऑर्डर दैट Maven, hey Maven, please build this package. I have this 70 number of code. Can you please build it? So immediately that Jenkins will order that. Jenkins is a tool, Maven is a tool. So ये टूल अभी टॉक करेंगे, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहेंगे। Jenkins is a tool. Tool मतलब ये software. That software will talk to another software. Hey Maven, please make a package. Once the package is completed successful, the message will code go to Jenkins. That package is created. Jenkins will immediately react. What it will do? Immediately that Maven को बोलेगा कि तू मेरे को कोड दे, अभी तू पैकेज बना मेरे को दे दे। वो पैकेज को लेके इमीडिएटली नेक्सस में स्टोर कर देगा कौन? Jenkins. Once it will be stored, तो ये जो सर्वर के पास अलग अलग लोगों के पास लोग मैनुअली करते थे, ये नेक्सस बोलेगा इनको, एंसिबल को, सॉरी जेनकिन बोलेगा, हे एंसिबल, तेरे अंदर मैंने जो सर्वर का नाम लिखा हूं 100 सर्वर, तो सारे सर्वर पे ये जो नेक्सस में जो एक पैकेज पड़ा है, वो पैकेज को उठा ये सब में डाल दे। कल अगर कुछ अपग्रेड होता है तो सेम यहाँ पे कोड अपग्रेड हुआ, इमीडिएटली जेनकिन को पता चला, Jenkins will do the test, do the package, send it to Nexus, then it will send that package to Ansible. Ansible is going to upgrade all the servers immediately. यहाँ पे कोई लोगों को रखना जरूरत नहीं। तो Ansible is a config and deployment automation tool. कोड को डिप्लॉय करते Ansible को यूज करने करके। क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे सब कौन किया? जेनकिन किया। सर यहाँ पे जेनकिन करता तो हमारा काम क्या है? योर वर्क इज टू राइट द जेनकिन जॉब स्क्रिप्ट वन टाइम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। एक ही एप्लीकेशन को डेवलप करने करके उसको लेके यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक ही बार एक डेवऑप्स इंजीनियर को ये सारे लाइफ साइकिल लिखना पड़ता है। इसका एक बार लिख दिया क्या सर यही चीज बार बार चलेगा? हो सकता है कल कुछ छोटा मोटा काम के लिए यही कोड फेल मार जाएगा, तो इस कोड में थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। तो यू बीइंग ए डेवऑप्स इंजीनियर, यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल द टूल्स अलोंग विद द जेनकिन। आज थोड़ा क्लियर हुआ? और थोड़ा हम लोग जितना अभी तक पढ़े थे सब कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो कोड लिखोगे, तो मैं आज बहुत बार कोड हो रहा हूँ, तो सर आप तो बोले थे कोड नहीं है, कैसे कोड आज बोले? नहीं, यहाँ पे ये लोग जो कोड लिखते हैं ना, उसका 5% कोड भी आपको लिखना नहीं पड़ता। ये अगर 100 लाइन कोड लिखते, आप पूरा सबको मिला के हार्डली 5 लाइन कोड लिखोगे। क्लियर? ऐसे तो ये जो कोडिंग है ये जावा कोडिंग नहीं है, ये कोई YAML कोडिंग होता है। YA मतलब इजी कोड है। आज अभी के लिए सोचो कि ये कोड सीखने के लिए जितना टाइम लगेगा उनका 10 टाइम भी नहीं, 100 टाइम भी नहीं। अगर तुम C सीखने के लिए 30 दिन लगता है, इनका कोड लिखने के लिए सीखने के लिए 1 दिन लगता है, 1-2 दिन लगता है। 2 दिन में आप ये लोगों का कोड लिख सकते हो।
सर के 2 दिन में अगर इतना बहुत ही सब लोग तो सीख सकते, नो, इसको सिखाने के लिए 100 घंटा लगेगा, 100 आवर, 200 आवर। I am going to give you the trainers who are going to teach you more than 180 hour. So after 180 hour only you will understand the concept of all, then practice of everything, right? So each time that I will do, you need to do the practice daily basis. बीच में जेनकिन पढ़ाई दिया जाएगा, फिर जेनकिन के थ्रू में कैसे ऑटोमेटिक पुल कोड होके ऐसा कैसे जाके एप्लीकेशन सर्वर में लॉन्च हो जाता है, आपको भी लगेगा जादू हो रहा है, तो मजा आएगा पहला 2 दिन। उसके बाद 1 साल काम करने के बाद बोरिंग हो जाओगे, बट पैसा मिलता रहेगा। नहीं, कोई बोरिंग नहीं होता है, न्यू ईयर को न्यू चीज सीखने मिलता है। आजकल गिटहब के जगह में लोग गिटलैब यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वहां, तो यू विल आल्सो गोइंग टू लर्न। सो डॉकर एंड कुबरनेटिस का काम क्या है, जब डॉकर कुबरनेटिस पढ़ेंगे पता चलेगा। बीच में इधर ये जो है ना एंसिबल, ये सारे एप्लीकेशन सर्वर में डॉकर इंस्टॉल होता है एक्चुअली, देन बीच में कुबरनेटिस आता है इधर। तो इसका पिक्चर मैंने नहीं किया हूं, बट यस, Kubernetes and Docker will be in between. So I hope everybody clear. So इसको मैंने यहाँ पे पाइपलाइनिंग करके दिखाऊं, देखो सेम यहाँ पे सोर्स कोड वर्जन जो बोला था ना, गिटहब इधर आता है, बिल्ड के मावेन आता है, यूनिट टेस्ट के लिए यहाँ पे सोनार क्यू आता है, डिप्लॉय करने के लिए एंसिबल आता है, ऑटोमेशन टेस्ट वही जेनकिन ये सब करता है, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन यहाँ पे भी सॉरी एंसिबल यूज होता है, जेनकिन यूज होता है, फाइनली मेजर वैलिडिटी सब करते हैं। सो ये सारे चीज CI/CD पाइपलाइन टूल करते हैं, बट मैंने ये 2 पिक्चर में आपको क्लैरिटी के साथ दिखाया। इफ यू डोंट हैव एनी if you understood, please let me know, we'll proceed, or else if you have any doubt, then we are going to discuss. तो इधर मैंने और थोड़ा क्लैरिटी के लिए दिखाया कि डेवऑप्स मॉडल कैसे होता है, कि डेवलपमेंट साइड में प्लानिंग, कोडिंग, बिल्ड, टेस्ट होता है, देन डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, मॉनिटरिंग, यहाँ पे ऑपरेशन, बट यहाँ पे बिल्ड एंड टेस्ट प्लस ये सारे काम कौन करता है ना, डेवऑप्स इंजीनियर करता है। तो यहाँ पे जेनकिन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। तो जेनकिन एंड AWS आने के बाद सब कुछ ऑटोमेशन हो गया, क्लियर। यहाँ पे मुख्य जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, वन इज AWS मींस लाइक क्लाउड, अनदर इज द CI/CD, एनी ऑफ द CI/CD, जेनकिन हो या बाम्बो हो या बिटबकेट हो, दीज आर द डिफरेंट CI/CD टूल्स। ये CI/CD टूल भी अकेला कुछ नहीं कर रहा था, पॉपुलर करने के लिए यहाँ पे अमेजन मतलब ये ज्यादा पॉपुलर होने के लिए यहाँ पे अमेजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। Amazon is also accountable and responsible for automate all of your tasks. So कैसे हुआ देखो, ये अब जेनकिन अमेजन कंपनी को खुद बोलेगा, यहाँ आदमी नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ कोड लिखा होगा, जेनकिन ने खुद क्रिएट करेगा एप्लीकेशन सर्वर। जब नंबर ऑफ यूजर बढ़ता जाएंगे, जब नंबर ऑफ यूजर हटता जाएंगे, फिर इमीडिएटली दैट एक सर्वर डाउन हो जाएगा और अमेजन को रिटर्न हो जाएगा। वो काम भी जेनकिन कर सकता है, यहाँ पे कोई आदमी का जरूरत नहीं है। आदमी एक बार कोड लिख के रखता है कि जब जब ऐसे नंबर ऑफ यूजर बढ़ेगा, यहाँ पे 100, 200, 300 हो गया, लेट्स से हमारा स्ट्रेंथ 100, सो ये तीनों अभी फुल है, इमीडिएटली अनदर सर्वर बना और उसके अंदर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दे, और नेक्स्ट टाइम जो यूजर आएंगे 4th सर्वर में जाएंगे, तो वो काम भी जेनकिन कर देगा, अगर बीइंग ए डेवऑप्स इंजीनियर हम लोग उसके अंदर कोड लिखे होगा। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा पानी पी के आते हैं, रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। क्लियर? 9 बजे तक पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछिए मुझे। नो डाउट? गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी चाहता हूँ अविनाश एपी, ये जो नीचे वाला अविनाश जो दिख रहा है, अविनाश तुम्हारा नाम क्या है?
ये नाम जो बुलाने का नाम, बोलो ना, वो जो जिसका फोटो दिख रहा है इधर, अविनाश। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट्स योर नेम? Yes, my nickname is my real name is Abhinas. Nickname is Sonu. सोनू। Yes, sir. तो अनदर अविनाश, ये कौन है? इसका नाम क्या है? My name is Kanha, sir. Nickname is क्या? Kanha, sir. Nickname is my कान्हा। nickname is ओके। अच्छा, दोनों को अच्छा लग रहा है। तुम्हारा पेरेंट्स फोन किए थे इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्लियरली? yes, sir. Clearly. सो दिस इज सोनू। Yes, sir. सोनू का घर जयचंद्रपुर है क्या? Yes, sir. Then other people like, so let me check everybody's. Chinmay Biswal, Yaswant Gornaik, Garnaik, sorry, Garnaik. Then Tushar Kant Samantray, Swarup, Sudhirmek Sthiti, Sonal, Shiv Prasad Nath, Samarjit, Priyavat, अच्छा, दिलोक, चिन्मय विशाल 2 बार क्यों? चिन्मय सर विशाल मेरा 2 बार? सर हाँ। मेरा मोबाइल कनेक्ट हुआ होगा सर, लैपटॉप में बोल। हाँ, तुम अभी एक्चुअली 18 है हम लोग, बट तुम 19 काउंट दिखा रहा है तुम्हारे लिए, हाँ ठीक है? शायद सर मेरा मोबाइल में ऑन होगा, मैं कॉल कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आलोक खुंटिया, अमिता पत्र, विद्याधर बेरा, ठीक है। तो यू गाइस शुड रीड प्रॉपर्ली। सो थर्सडे को मैं आप आज हो गया मंगलवार, राइट? तो थर्सडे को आतिश सर आ रहा है भुवनेश्वर। Those who want to meet, I will send a message on Wednesday evening, मतलब tomorrow evening, so that you can plan accordingly to meet him directly on at Bhubaneswar, which is the location I will tell you. Mainly, we will meet at our main premises at Nico Park area. If anybody is interested, okay, so that at least whatever maybe you have the doubts, anything, you can directly ask to him. And हो सकता है उस दिन आप पेमेंट करोगे. Those who want to continue after our 4th session, after our 4th valuable classroom, right? It is a classroom session, right? So classroom मतलब online classroom center session. So if you don't want to meet, it's okay, but I hope meet करना अच्छा है. But yes, Thursday को सब लोग उनका पेमेंट कर लो, ठीक है? जो पहला इंस्टॉलमेंट आज 15 के. सो अभी तक आपको मन में डाउट होगा, क्या यार ये लोग पढ़ा रहे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे. तुम लोग अगर सारे लोग डिसअपॉइंटेड होंगे मेरे क्लास पे, मैं तुम्हारा पैसा अगर ले लूंगा तो मेरे लिए पाप लगेगा ना. तो मैं कभी डिसअपॉइंट आपको करने नहीं दिया 4 दिन में, राइट? तो अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, so that at least I can know myself. Yes, these are the improvement area we should improve. Or else, please meet this sir and send give that particular 15K as a first installment to Atish sir, और वो जो जिसको रखेंगे आज अकाउंटेंट उसको रखेंगे. तो आज नंबर पे दे दो या गूगल पे तो शायद नहीं है, एक नंबर मिलेगा आप लोग को, मोबाइल नंबर, वो हमारा ऑफिस का नंबर, मोबाइल नंबर नहीं, सॉरी, अकाउंट नंबर. तो यू आर गोइंग टू पे इन दैट. ओके, सो no problem. So if you don't have doubt,
I will have some water for 2 to 3 minutes. Then I will come back. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yeah.
Hello. Yes. So these are the story about the whole DevOps thing. That today I have told a detailed story about the DevOps concept. Okay. तो डिटेल्ड स्टोरी हम लोग बोल दिए अभी. आई एम गोइंग टू द लिनक्स क्लास. चलो 95% or 98% tools are going to support Linux environment. Very rare tools are in Windows, but those which are supporting by Windows, they are again supporting by Linux. So बहुत कुछ टूल है जो कि विंडोज पे काम नहीं करता है, बट विंडोज में जो काम करता है वो लिनक्स पे काम है. इसलिए हम लोग ऐसे कुछ सीखेंगे जो कि यूनिवर्सल. सो लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम where maximum companies are going to create their environment of DevOps concept. So now I am closing this particular slide. Where we'll go for the other slide called Linux. अच्छा, आज हम लोग ओनली इंट्रोडक्शन करेंगे लिनक्स का. ओके, बहुत रेयर चीज पढ़ेंगे. सो लिनक्स इज नाइदर यूनिक्स नॉर डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स. ये जो मास्क के पीछे जो उसके बंदा का दिख रहा है, ही इज द फादर ऑफ लिनक्स. एवरी सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई डेवलपर होता है या स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं जो कि इसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल. दोज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल टू, लाइक फॉर माय चाइल्ड, फॉर माय किड नेम इज नवेंदु. नवेंदु का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लिया, सो आई एम द फादर ऑफ नवेंदु. सो लिनक्स का रेस्पॉन्सिबल जो लेके बनाया था वो उसका नाम है लिनज टर्वाल्ड. लाइनज टर्वाल्ड. लाइनज टर्वाल्ड is the father of this Linux, and he developed the code of Linux from the scratch. That's why we can tell it is not derived from Unix. पहले Unix आया था, Linux से पहले Unix आया था, बट हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये Unix से डिराइव हुआ या it is a Unix. No, Linux is not Unix. Linux is Linux and it is not derived from Unix. ये चीज हमको जानना पड़ेगा. अभी आप लोग के बीच में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेंगे. So those engineers should not think that Linux is Unix or Linux is derived from Unix. It is totally different from Unix. It is a new operating system. It has no relationship in the Unix. Clear? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we'll prove it. We'll prove it in the history. अच्छा, मेरे साथ जो लोग, मेरे पास जो लोग पढ़ेंगे, this is my journey. This page you should understand today so that you guys are not going to miss any class. Okay. मेरे क्लास का पहला रूल, you must have the laptop or desktop to be in my class. If you want to get a job from us, if you just want to study from us
and you are not giving the responsibility to get a job from our side, then आप 40,000 रुपया दे दो, आप जो मस्ती करना है करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है. I am least bothered about them. But those who are having the dream that yes, after studying from this trainer or after studying from this particular organization, these people are going to responsible for give us job, then you have to obey our order. It is my order, it is my advice, it is my anything, it is my request. So everything you have to remember that मेरे को निहार सर जो बोल रहा है वो अगर मैं पालन करूंगा देन मेरे को सक्सेस मिलेगा. ओके, बट ये पब्लिक कोई लोग पूछते कैन आई लर्न आईटी, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स. मैंने आपको बोला था कि यू कैन लर्न आईटी, एनीबॉडी कैन लर्न आईटी. व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स? इंग्लिश, ओनली इंग्लिश एंड your eligibility criteria that I have told you from the beginning. How is possible for a non-IT professional to learn IT? Everything is possible for anybody, as I told. Everything is possible for anybody. When you didn't learn Linux, you will learn Linux and you will be Linux engineer. When you were not an English speaking person, you learned English, then you became an English speaking person. So physics आपको पहले पता नहीं था, आपको physics सीखा हो गया. Like this, आपको IT पता नहीं है, आप IT सीखोगे, आपका हो जाएगा. ये मैं करवाऊंगा. How much labor to do for learn? आपको 2-3 घंटा अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, लर्निंग आपका हो जाएगा. Learning knowledge is not going to help you to get a job. The more you will be involved actively, there is a more chance to get the job. Actively, यहाँ पे बोला ना, active involvement. How much labor to do achieve the target. टारगेट अचीव करने का स्वप्न कुछ अलग है. आप ऐसे सीख के लोगों को सिखाना, सीख के जस्ट जानना खुद के डेवलपमेंट के लिए, इट इज डिफरेंट. इट इज डिफरेंट. मेरे को बहुत नॉलेज चाहिए, सीखते बहुत लोग. मेरे एक दोस्त है जो कि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स रख के केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा शायद उड़ीसा में 2-3 जगह में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है था वो टाइम पे, मेरे टाइम पे 2004-5 का बात कर रहा हूँ. मेरा दोस्त क्या किया, मैंने एमसीए किया, मेरे दोस्त ने पीजी किया मैथमेटिक्स में, मतलब स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी स्टैटिस्टिक्स में. उसके बाद वो फिर एमसीए किया. मैंने उनको पूछा कि तू दोनों क्यों किया? ना तेरे से मैं नॉलेज है इसलिए. अच्छा ठीक है. मैंने एमसीए में नौकरी किया 10,000 रुपया में. वो फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में जाके कहीं पे टीचरशिप गया. उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा था उसको, फोकट से कोई कॉलेज में जाकर काम किया. जब मैं 32,000 इनकम कर रहा था, उसका इनकम शुरू हुआ 6,000 से. आज मैंने जो 2.5 लाख इनकम कर रहा हूं, उसका इनकम आज 36,000. तो मैंने अभी उसको पूछा, मेरे बेटा को मैं XYZ कॉलेज में पढ़ाने वाला हूँ. मेरा स्कूल, मेरा बच्चा अभी ये स्कूल में पढ़ रहा है. तेरे बच्चे कहाँ पे पढ़ रहा है? ना इधर पढ़ रहा है. अच्छा, मेरे पास कार है, तेरे पास क्या है? साइकिल है. डिफरेंट दिख रहा है? तो इतने सारे कोर्स करके क्या फायदा है जब आप उसको यूज नहीं करेंगे? तो यहाँ पे जो लोग आके सिंपली आए हैं पढ़ने के लिए, तो फायदा नहीं है पहले बात. तो आप अगर आप जाके, हाँ आपके पास बहुत पैसा है, आप जब टाइम पास करने के लिए आए, इट्स ओके. मेरे को पैसा चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए, इट्स ओके. यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी. बट मेरे पास अगर कोई जॉब करने के लिए आया है, मैंने बोला उसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. यू शुड स्लीप विथ DevOps, वी शुड ईट DevOps, you should drink DevOps, you should do everything with DevOps. Then only you will get the job. आपका सोन ना, उड़ीसा में आप लोग सब मैक्सिमम लोग उड़ीसा लोग हैं,
शयन है, सपन है, जागरण है। आपको वही होना चाहिए जैसे आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड याद आता है। सोने के टाइम पे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड याद आता है, खाने के टाइम पे हो जाता है, पढ़ने के टाइम पे हो जाता है। अभी से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कॉमन बॉयफ्रेंड बना दो और कॉमन गर्लफ्रेंड बना दो, वो होता है आपका डेवॉप्स। तो हो जाएगा, मैं बोलता हूँ हो जाएगा। तो देन सक्सेस जर्नी, देखो यहाँ पे कोटेशन में कहीं से कॉपी किया हूँ। इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू, you will find a way. If it is not, then you will find an excuse. पढ़ा नहीं, आपको अगर पढ़ना है, जॉब करना है ना, पढ़ोगे, मर के पढ़ोगे, कुछ भी करके पढ़ोगे। नहीं पढ़ना है ना, आप बोलोगे मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, आने के टाइम पे साइकिल पंक्चर हो गया। कुछ लोग ज्यादा मेरे साथ जब फ्री हो जाएंगे बोलेंगे सर मेरा गर्लफ्रेंड मेरे को धोखा दे दिया। भाई ये सब ना एक्सक्यूज होता है। आप नहीं पढ़े, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, you are only the solver. Nobody, even if Nihar sir is not going to help you in this regard. If something is important to you, you make the time for it. You have to get the time. सोने के टाइम को बचाओ, नहाओ मत, 3 टाइम के खाने के बजाय 2 टाइम पे खाओ। निको पार्क क्लासरूम में नहीं बैठ के निको पार्क के बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। निको पार्क से नहीं जाके निको पार्क का वाला क्लासरूम के पास जाओ, हो जाएगा इधर। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा 2 प्रोविजन दिए कि निको पार्क के पास ना क्लास खत्म होने के बाद जिसका गर्लफ्रेंड है, जिसका बॉयफ्रेंड है, 5 मिनट के लिए बुलाओ, तो थोड़ा बैठ जाओ शांति मन में, फिर चला जाओ घर पे, फिर पढ़ के आओ। तो नो प्रॉब्लम, आप एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट मेरे क्लास के बाद मिनिमम 3 आवर पढ़ोगे तो आप लर्न करोगे, और जितना इन्वॉल्व हो गए 6 आवर, 7 आवर, 5 आवर, you will get the job accordingly. Then our learning model, देखो CCD मॉडल, concept, content, then depth. concept, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम लोग कोई भी चीज पढ़ाते हैं आपको पहले रिक्वायरमेंट बताएंगे। हमारा जितने सारे ट्रेनर है, all the trainers are going to tell you the requirement first, then the requirement के अगेंस्ट में आपको क्या सीखना पड़ेगा आपको बता दिया जाएगा। That is called problem statement. Then solution with different options, content. आपका कंसेप्ट को देखिए, मैंने जो बताया था कि CI/CD पाइपलाइन के लिए, CI/CD मतलब कंटिन्यूअसली कोडिंग डेवलपमेंट, CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट करके उसको इंटीग्रेट करना, पैकेज बनाना, डिलीवरी मतलब लॉन्च करना, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट को बनाना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस। जो CI/CD के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन था, वन इज जेनकिन, अनदर बाम्बो, बिटबॉकेट, गिटलैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मल्टीपल कंटेंट्स आर देयर, मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं। सो एवरी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो हमको आपको कंटेंट, कमांड, टूल के द्वारा दिखाएंगे। देन एग्जांपल्स यूजिंग ईच ऑप्शन। अगेन ये जो कंटेंट को हम लोग डिलीवर करेंगे आपके सामने, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टेक्निकली, देन वो टेक्निकल कंसेप्ट को समझाने के लिए हम लोग जेनेरिक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, don't take it in other way. You are mature, I am so mature, that's why I would like to give an example. मैंने एक टाइम पे क्लासरूम में था, मेरे को एक हिडन फाइल के बारे में बताना था कि लोग हिडन फाइल बनाते हैं। कुछ सिविल बंदे थे, वो लोग कभी कंप्यूटर दिखे थे नहीं, मतलब आजकल तो ऐसे नहीं होगा, बट लोग बोले कि हम साथ कंप्यूटर में कभी काम नहीं किया। मैं बोला कभी हिडन फाइल बना है क्या? IT का लोग बोले 90% लोग बोले हम लोग किए। फिर मैंने ये लोग को समझाऊं कैसे जो लोग नहीं किए हिडन फाइल क्या है। मैं बोला अच्छा ठीक है, सलमान खान का फोटो कभी घर पे रखा है क्या? बोला हाँ रखा हूं। मैं बोला कहाँ पे रखे? नहीं वॉल पे चिपका हूं। अच्छा सनी लियोन का फोटो कभी रखा है क्या वॉल पे? नहीं 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 सर मैं रखा नहीं। मैं चाहता सनी लियोन को कहाँ पे रखा है?
नहीं मेरे बुक के बीच में रखा हूं, मेरा बैग के अंदर रखा हूं, जब इच्छा होता दिख देता हूं, उसको बंद कर देता हूं। अच्छा, सनी लियोन को तुम हाइड किया, सलमान खान को हाइड नहीं किया, ऐश्वर्या को हाइड नहीं किया, तो सनी लियोन इज ए हिडन कैरेक्टर, उसको हाइड कर सकते हैं। तो मेरा जो एग्जाम्पल होता है, नॉट सनी लियोन एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, तो हाइड, फाइल को कब हाइड करते हैं, जब फाइल में हम लोग कुछ सीक्रेट्स ही रखते हैं। वन ऑफ द सीक्रेट्स इज पासवर्ड्स। हम लोग कोई पासवर्ड, कोई इंपोर्टेंट चीज को हम लोग क्या करते हैं ना, फाइल के अंदर रखते हैं, वो फाइल को हाइड कर देते हैं ताकि दूसरे लोग कोई उसको दिख नहीं पाएंगे। कभी कभी हम लोग वो फाइल के अंदर सनी लियोन का फोटो रखे हम लोग, तो उसको भी हाइड करेंगे ना। तो इस टाइप का एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे देना पसंद करते। सर बदतमीज सनी लियोन का नाम देते हैं बार बार, नो। मैं आई एम टेलिंग वन फिटेस्ट एग्जाम्पल फॉर हिडन फाइल। आई विल नॉट यूज लास्ट एनी टाइम दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, बट यस समटाइम्स once in a blue moon, out of our 100 examples, 1-2 examples may be like this Sunny Leon, this Anubhav Mahanti, Navin Patnaik, Modi, और our स्मृति ईरानी। इस टाइप का 2-4 एग्जाम्पल हम लोग को कैरेक्टर के ऊपर देते हैं, दिख लेते हैं। जब एग्जाम्पल दिखेंगे वो टाइम में सीखेंगे। ओके चलिए, तो एग्जाम्पल अगर तुम टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं समझ पाओगे, मैं उसको समझाने के लिए आपको जेनरिक एग्जाम्पल दूंगा। Getting me or not? Everybody clear? Yes, sir. नहीं, मेरा वाइफ है, मेरा बच्चे, मैंने यही, मेरा पापा मम्मी है, मैं पापा मम्मी के सामने भी ये चीज बोल रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई वांट टू टीच इन एनी वे, पीपल शुड अंडरस्टैंड। देन प्रैक्टिस इज योर साइड। ये तीनों काम मेरा है, तो सीसी ये कंसेप्ट मेरा है। नाउ आपका काम ये है, practice in depth. You have to practice by studying my video, by seeing my video, by watching my classroom, by everything. Then you will have to practice. The more you will practice, the more you will have the depth knowledge, or the more you will dig into that particular concept. Once you will be in the depth, you will have a lot of questions. You will have a lot of doubts. Then we have the doubt clear class. Then if you are not getting in doubt, then मैं भी तुम्हारा डाउट क्लियर कर, मतलब डाउट बनाऊंगा तुम्हारा। लोग कभी कभी प्रैक्टिस करते करते सही चीज को प्रैक्टिस करते, इसलिए कोई गलती होता नहीं। मैंने गलती कैसे होगा, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट आपको दूंगा, लॉट्स ऑफ असाइनमेंट दूंगा, जहां पे आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करने के बाद आपको नहीं आएगा, आप मेरे पास आओगे, मैंने आपको सिखाऊंगा, वो टाइम में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। So the more you will go into depth, the more you will have question. If you don't have question, I will ask you the question. If you are not able to, if you are answering, then it's okay. If you are not able to answer, then I will resolve your answer. So here around you are going to get 300 to 400 questions from whole of our DevOps. Then again, another level of testing, मॉक इंटरव्यू। एवरी कोर्स के बाद, लिनक्स कोर्स के बाद आपको मॉक इंटरव्यू होगा, लिनक्स एंड गिटहब के बाद आपको मॉक इंटरव्यू होगा, लिनक्स गिटहब अंसिबल के बाद फिर से मॉक इंटरव्यू होगा। तो इसे मॉक इंटरव्यू करके, मॉक इंटरव्यू इज नथिंग बट इट इज ए मॉडल आज सेम आज द मेन इंटरव्यू। जो आप सपोज IBM कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देना जा रहा है, उसके पहले 10-12 इंटरव्यू हम लोग कर लेंगे ताकि आपका डर छूट जाएगा। तो यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यू वेयर यू विल रिलीज योर स्ट्रेस, यू रिलीज योर फियर फैक्टर, एवरीथिंग। इसको बोलते हैं स्टेज फैक्टर बोलते हैं, देखो ना। पहले स्टेज में नाचने से पहले घर पे रिहर्सल करते, कोई लड़की गाना गाने से पहले रियाज करते, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। सो यू आर गोइंग टू रियाज, यू आर गोइंग टू हैव द मॉक इंटरव्यू। सो थ्रू दैट मॉक इंटरव्यू यू विल फिनिश योर स्टेज फियर, उसको बोलते हैं स्टेज फियर। देन नोट, व्हाट इज नोट? सो यू शुड नॉट लॉग इन थ्रू मोबाइल और टैब, log in
बिफोर 5 मिनट। ये मेरे आपके लिए रिक्वेस्ट है, ये मेरा गुजारिश है आप लोग के लिए। जो लोग गलत कर रहे हैं मोबाइल पे दिख के, प्लीज मैं अगर आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको खुद के लिए कितना रिक्वेस्ट करना चाहिए बोलिए। You guys should be more serious about your career. Nobody is going to change your destiny. You are only person who is going to change your destiny. We are just the media, via media, nothing. Direction, देखो ये डायरेक्शन को पूरा देखिए। डेडिकेशन, रिजल्ट, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। लाइक आई हैव टोल्ड यू दिस 5th पॉइंट हियर। Once you will start dedication, obviously you are going to get the result. रिजल्ट पाने के बाद ना लोग को जॉब मिल जाता है, यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, बट आपका सैलरी कैसे हाइक होगा? आप 5 लोग एक ही बार में ज्वाइन किए, 1 साल के बाद दिखा एक बंदे का 2 लाख हाइक हो गया, एक बंदा का जॉब चला गया, दूसरा बंदा को 3 लाख हाइक हो गया, चौथा बंदा को डिप स्किल अवार्ड मिलता जा रहा है। तो हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग? अगर 5 लोग आप सेम टाइम काम करो, सेम टाइप का काम करोगे, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द दिस टाइप ऑफ appreciation. You should do a work such that you will get recognized. आप आपका अच्छा काम के लिए, काम तो सब लोग करेंगे, आपका अच्छा काम के लिए आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। कंपनी में ये सब होता है। I am being recognized every year in different types of works. मेरे आईटी जॉब तो है, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, ऊपर पढ़ के जाके ट्रेनिंग देता हूँ वही बैच पे, जो ट्रेनिंग जहाँ पे मैं टीम लीड के हिसाब से काम करता हूँ, वही मैनेजर के अंदर अदर टीम को मेरा नॉलेज ट्रांसफर करता हूँ प्रोएक्टिवली। उसके लिए सैलरी नहीं मिलता है, उसके लिए मेरे को बोनस मिलता है, अवार्ड मिलता है। मल्टीपल अवार्ड मिलने के बाद मैं रिकॉग्नाइज होता हूँ, उसके बाद मुझे मिलता है प्रमोशन, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन। या वंस यू आर प्रोमोटेड, दैट मीन्स यू आर रेपुटेड। सो वंस यू आर रेपुटेड, ऑटोमेटिकली वो टाइम में पैसा तो आएगा, और पैसा जिसके पास नहीं है आजकल रिस्पेक्ट उसको नहीं है। आपके पास जो पैसा आएगा, आपका हाथ भी बोलेगा ज्यादा काम करने के लिए, मुंह भी बोलेगा, आप आंख भी बोलेगा, आपका बॉडी बोलेगा, सब कुछ। जैसे कि अभी बताओ जो विवेक बिंद्रा का स्टोरी देखो, मोदी का स्टोरी देखो। मोदी जब चाय वाला था उसको कोई पूछ नहीं रहे थे, आज मोदी प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उसको रेस्पेक्ट है। तो वंस यू विल बी रेपुटेड, यू विल गेट रेस्पेक्ट। ये रेस्पेक्ट के टाइम पे आपको पैसा नहीं मिल चाहिए, पैसा मिलता रहेगा। यू आर गोइंग टू टेल, क्या यार 2 लाख कमाना और 200 रुपया कमाना समान ही है, आप ही बोलोगे। ये टाइम पे यहाँ तक जो आ जाते हैं ना रेपुटेशन के बाद, आप ही बोलोगे कि शांति के लिए 200 रुपया का, 2000 रुपया का, 2 लाख रुपया का मूल्य सेम ही है। मेरे को अभी शांति चाहिए, मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट। और वंस यू विल गेन द रेस्पेक्ट, you will become like Einstein, you will become like Ajit Premji, okay, like this. ठीक है, तो ये थोड़ा कोटेशन में रखा हूं, छोटा मोटा कोटेशन, मतलब द स्मॉलेस्ट कोट अबाउट दिस टाइप ऑफ टर्मिनल चॉइस, द विलिंगनेस टू लर्न। आपका चॉइस ये होना चाहिए। गाइस मैं आज जो बोल रहा हूं ये मेरा लेबर है। मैंने ये पर्टिकुलर स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए मुझे 3 डे लगा है। आई हैव स्पेंट 3 डे फॉर दिस सिंगल स्लाइड। पूरा पीपीटी नहीं, ये पीपीटी में 28 स्लाइड है। जो सेकेंड स्लाइड की बात कर रहा हूँ, 28 स्लाइड से दिस इज द ओनली स्लाइड वेयर आई हैव गिवन माई 3 डे टाइम। योर चॉइस शुड बी द विलिंगनेस टू लर्न, स्किल, द एबिलिटी टू लर्न। देखो चॉइस एंड एबिलिटी में, विलिंगनेस एंड एबिलिटी में डिफरेंस है। विलिंगनेस मतलब आपको इच्छा होता है कि ऐश्वर्या राय को शादी करूंगा तो मेरे को मजा आएगा, दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस। एबिलिटी मतलब मैं कैपेबल भी होना चाहिए ना, मेरे पास, मेरा औकात क्या है ऐश्वर्या को शादी करने के लिए, तो मेरा औकात होना चाहिए, दैट मींस मेरा एबिलिटी होना चाहिए टू मैरी ऐश्वर्या राय, राइट। सो यहाँ पे विलिंगनेस एंड एबिलिटी बोथ शुड बी देयर to achieve the goal. Then gift, the capacity to learn। देखो भगवान को बोलो
कि भाई एबिलिटी तो आएगा बट मेरे को कैपेबल बनाना, मैं आई नीड टू बी कैपेबल। मेरे को कैपेसिटी दीजिए भगवान, मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, पावर दीजिए, सो दैट आई विल गेट सम एबिलिटी। सो कैपेसिटी चाहिए, आई हैव टू गेन द कैपेसिटी। पावर आना चाहिए, पावर आता है जब आपके पास विलिंगनेस आता है, शक्ति क्षमता बोलते हैं। उसके बाद ग्रो, आपको ग्रोथ करना चाहिए कहां पे? द प्रैक्टिस टू लर्न न्यू थिंग्स, यहां पे ग्रो करो। ये भाई तुम हाइट में बढ़ो मत, चौड़ा में मत बढ़ो, वजन में मत बढ़ो, पैसा में मत बढ़ो। बढ़ो कहां पे भाई? तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक ही सिस्टम के पास बैठ के नया नया चीज सीखने के लिए, दैट विल टेक यू अहेड। आपको ऊपर जाने के लिए आपको प्रैक्टिस के साथ बैठना पड़ेगा। मेरे गुरुजी जो है वो लोगों के सामने 10-10 घंटा ऐसे बैठते, स्ट्रेट बैठते, तो उसका प्रैक्टिस हुआ है। तो आपका वो प्रैक्टिस होना चाहिए कि मैंने कैसे घर पे बैठ के मैं लैपटॉप के सामने 4 घंटा कोई नया चीज सीखूंगा। दैट शुड बी, सो यू शुड प्रैक्टिस योर प्रैक्टिस। देन समझा ना, प्रैक्टिस टू इंक्रीज योर प्रैक्टिस। Rich learning is the most important currency. It can make anybody rich. If you have the ability to learn and you have achieved a lot of learning, then you can earn anything. मेरे को मेरा मम्मी कभी ना कभी थोड़ा डालमा बनाना सिखाया था। मेरा इंटरेस्ट के लिए मैंने दही बड़ा बनाना सीख गया, मैंने मछली बनाना सीख गया, चिकन चिली बनाना सीख गया। I have made my own hotel in the Pune in front of SP Infocity. मैंने खुद IBM पे 8 घंटा काम करने के बाद मेरा सैलरी था 28,000। मैंने आके मेरा होटल पे चिली चिकन बना के लोगों को खाना देता था। That was my learning. So cooking was another learning for me, so that मैंने ऑफिस पे 28,000 का काम करके इधर भी 18,000 कमाता था। आफ्टर सम डे मैं देखा कि अरे मेरे पास और भी एक नॉलेज है, लिनक्स पढ़ा सकता हूँ। मैं बैंगलोर में 3 साल था, वो टाइम पे नहीं पढ़ा पाया, बट वो तो मैंने पहले ही पढ़ा है, वो तो उसको ही मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं पुणे में पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास अभी के टाइम पे 3 नॉलेज है, आईटी का इंजीनियर, कुकिंग एंड टीचिंग। एंड नाउ आफ्टर टीचिंग आई बिकेम ए मेंटर। नाउ आई केप्ट मल्टीपल ट्रेनर्स and I am supplying my trainers to different companies like ABD, like Gilotech, like some Velocity, and my own training center name is called PyTech. And I have lot of knowledge, so I have learning. Learning is the most important currency, using this type of knowledge, I am now rich. Due to some reason, if my job is going to discontinue or they are kicking me out from XYZ company, then I can utilize the same time in the cooking. Obviously, मेरे को अभी कुकिंग नहीं पसंद है, बट कल मेरे को अगर जॉब मेरे को निकाल दिया, कल मैंने वो 9 घंटे से 4 घंटा अगर कहीं पे काम करूं, मेरे खुद का होटल खोलूंगा, वहां पे भी मैंने 1 लाख का सौदा बेचूंगा पर मंथ एटलीस्ट। That is my learning. Then failure. Fail. First attempt in learning, it may be many times. ये जो होता है ना, आप फेल्योर होते हैं, फेल्योर होना जरूरी है। आप अगर कोई फेल नहीं हुए हैं, आप आइंस्टाइन को फॉलो कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, फेल क्या होता है बता देंगे। फेल्योर होते हैं मिस्टेक से, फेल्योर होते हैं मिस्टेक से। मिस्टेक को बताना चाहिए, मिस्टेक को कन्फेस करना चाहिए और वो मिस्टेक से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? ताकि मेरे को गलत फिर से नहीं हुए। ये आपको रनवे 34 फिल्म देखिए, उसमें अमिताभ बच्चन इसको बताया कि फेल इसीलिए होते कि मिस्टेक करते, मिस्टेक करने के बाद अगर तुम मिस्टेक को छुपाओगे प्रॉब्लम, मिस्टेक को बताना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए।
और अनुताप होना चाहिए, आपके रिपेंट होना चाहिए कि मेरा मिस्टेक के लिए मेरा ये गलती हुआ, फेल हुआ। उसके बाद वो मिस्टेक से ऐसे कुछ चीज सीखो ताकि मुझे गलती फिर से नहीं हो। तो आप जब चंद्रयान को, जो भी कोई मंगलयान को, मंगल मिशन, मिशन मंगलम करके जो फिल्म था, पहली बार फेलियर हुआ था, उसके लिए सेकेंड टाइम में जो पास किए, फेलियर के ऊपर ज्यादा गुरुत्व दिए, इसलिए सक्सेस हो गए। तो फेलियर को भाई आप सक्सेस का पहला स्टेप सोचना चाहिए। सक्सेस इट्स नॉट योर टारगेट। सक्सेस को कभी टारगेट मत करो। जब टारगेट करोगे आप लिमिटेड हो जाओगे। भगवान को ऐसा कुछ मत मांगो, भगवान मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, मेरे को 1 लाख का नौकरी कर दीजिए। नो, भगवान को ये मांगिए कि मेरे को ऐसे कुछ कैपेबल बनाइए जिसके लिए मैंने कोई भी जगह में फिट हो जाऊंगा। मोदी को कोई क्वेश्चन पूछा था, सर आप कौन सा टेलर में जाके खाना ये बनाते हैं, कौन सा टेलर में आप, कौन सा जगह में आप सब बढ़िया फिटिंग ड्रेस बनाते हैं, आप बहुत पैसा खर्च करते हैं शायद। मोदी जी क्या बोले पता है? ऐसे नहीं, मेरा बड़ी ऐसा है, मैं जो ड्रेस पहनता हूँ वो मेरे लिए फिट हो जाता है। मैं कोई कपड़ा लाके सिलवाता हूँ नहीं, मैं कपड़ा खरीदता हूँ। कुछ लोग मेरे को प्यार से बोलते हैं, सर आज मैं आपके लिए कपड़ा लाऊं, आपका माप ले लेता हूँ, तो मेरे को तो वो माप ले लेते हैं, वही ड्रेस मिलकर अच्छा लगता है, फिट हो जाता है। तो आपको खुद को ऐसे फिट बनाओ जिसके लिए आपका टारगेट कोई होना नहीं चाहिए। इट शुड बी अ जर्नी। आई विल लर्न डेवऑप्स, बस खत्म हो गया, 10 साल तक डेवलपमेंट मेरे को यही में रहना। नो, आफ्टर डेवऑप्स इफ यू आर गेटिंग एनी अदर अपॉर्चुनिटी आल्सो after 3 years, please learn that. So your journey should not be fixed. If you are targeting something, it's a problem. You should not target. You should, मैं उसके लिए सोल्यूशन देता हूं। कैसे ना, आप सोचो कि मैंने every month I will increase at least 1%. So 12 महीने में 12%, 8 साल में 100%। हो गया ना आपका जिंदगी का तरक्की। 8 साल में 1% बोल रहा हूं, एवरी मंथ पे 1% इंक्रीज। यू विल अपग्रेड योरसेल्फ विद इन 1 month, ओनली 1%। 96 months 96%, 8 साल ओनली। 8 साल में आप कहां तक पहुंच जाओगे बताओ। बट आप अगर जल्दबाजी करोगे, मैं एक दिन में सब कुछ सीख जाऊंगा, आप डेली सीखने के लिए ट्राई करोगे, डेली हारोगे, आपका 12 साल कट जाएगा, कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये मैंने इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर एक चीज में मैंने वर्कआउट किया गाइस। आई हैव वर्कड आउट एवरीवेयर। आज भी मेरे को 42 होने जा रहा है। आई एम वर्किंग फ्रॉम 6 AM till 10 PM। हाउ? लर्निंग को मैंने ठान लिया कि यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। आपका मुट्ठी में सब कुछ रहेगा, दुनिया को आप मुट्ठी में रख सकते हो। तो आज मैंने थोड़ा ये क्लास में मैं थोड़ा लोगों को जगाता हूं, भाई जागो करके। गाइस, वाज इट रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस? मैंने मेरा स्टोरी थोड़ा बोल दिया। मेरा स्टोरी बोलने के लिए जो 5 मिनट गया, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, बट दिस वाज माय सेकंड स्लाइड वेयर आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ थिंग। सो ये चीज मैं सबको बचता हूँ, क्लास 1 स्टूडेंट से लेके मेरे पास जो भी आते हैं, कोई भी आते हैं, मैं सबको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, विल यू गाइस follow me in this regard? Yes, sir. Yes, sir. तो थर्सडे से हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, सॉरी लिनक्स पढ़ेंगे। सो लिनक्स का हिस्ट्री बताने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों बोला कि लिनक्स इज नॉट यूनिक्स और नॉट डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स। तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ मिलेगा। ये स्लाइड आपको मिलेगा, ओके। ये स्लाइड आपको मैं दे दूंगा थर्सडे को। उसके बाद जो नोट्स है लिनक्स का हैंड राइटिंग वाला नोट, मैंने मेरे एक स्टूडेंट को पढ़ाया था। मैंने खुद नहीं नोट बनाया था मेरे लिए, बट पढ़ाता हूँ।
तो जो एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट प्रीतम करके, तो वो प्रीतम खुद का नोट बनाया था, उसके बाद उसका नोट मुझे अच्छा लगा, तो वो नोट को मैंने आप लोग को देने वाला, मेरे पढ़ाया हुआ। ओके, तो इट इज ए हैंड राइटिंग। सो मैंने थर्सडे को ये पढ़ाने के बाद ये स्लाइड के साथ साथ वो नोट भी दे दूंगा, पूरा लिनक्स का नोट, सो दैट Thursday onwards we are going to do the practical things. You must have the laptop with you. That's why मैंने ये एक पेज में मैं सब कुछ बताया। Okay, everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा क्लास स्टार्ट होने से पहले I want a big clap from your side. So with lot of energy we should enjoy the next session. Okay, so next class onwards practical sessions are going to be covered, so everybody should really enjoy. यहाँ पे ठीक है, स्नेहा सर कुछ भी बकवास बोल रहा है, कुछ को लग रहा होगा क्या यार ये हम लोग बचपन में छोटे बच्चे था, ये टाइम तो हमारा क्लास टीचर बताया था, फिर भी क्यों टीचर बता रहा है, ये आपको याद दिलवाता हूँ। आप सुने बट फिर मैं आपको याद दिलाना पसंद करूंगा, because again you became a student, right? So it should be there. So I will have a clap for my energy today, so that's why you should also show your energy by clapping here. Okay, okay. So मैं किसी का ताली नहीं सुना। अच्छा, आज का क्लास में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बट yes, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। Yes, sir. हाँ, आज के बाद एक चीज और होना चाहिए। कुछ लोग मेरे को कभी-कभी फोन करते, सर मुझे XYZ बोला कि तुम ये एज में क्यों कोर्स कर रहा है, और तुम अभी मैकेनिकल है, तुम अभी इलेक्ट्रिकल है, हम लोग कितने लोग को दिखे बैठे, बहुत लोग आते हैं भुवनेश्वर में ऐसा शोबाजी करते, हम लोग करेंगे नौकरी करवाएंगे बट हेल्प नहीं करते। वंस यू हैव डिसाइडेड, उसके बाद किसी को भी मत सुनो, जो आपको खींचता है उसको आप दिखाओ। 5 महीने तो बात है, 5 महीने के बाद आप उसको दिखाओ ना कि आप करके दिखाए करके, उसके बाद उसको लेके पार्टी दो, उसको लेके कोल्ड ड्रिंक्स दो, उसको लेके दारू दे दो। जो लोग दारू पीते हैं, तुम लोग कोई भी दारू बार पीते होंगे, उनको लेके एक बियर बोतल दे दो, समझ में आएगा उन लोग कि भाई देखो ये कोर्स है, मेरे को डेली आके 5 बियर है, और खिलाओ उसको, समझ में आ जाएगा। फिर उसको लेके कहीं फिल्म चला जाओ, उसको लेके टूर बना दो, गोवा चला जाओ एक बार, तो तब पता लगा रही बंदे के पैसा हो गया, मैं 1 महीने का पैसा एंजॉय करो ना, पापा को 10,000 दे दो, उसके बाद 40,000 रुपया खर्च करो उनके पीछे, पता लगा तुम्हारा औकात क्या होगा पढ़ने के बाद। अगेन, सो प्लीज डोंट बी डिमोरलाइज्ड बाय एनीबॉडी। आप ठान लिया यू आर बीइंग ए डेवऑप्स इंजीनियर, सो यू विल बी डेवऑप्स इंजीनियर। ठान लिया, ठीक है, चलेगा। कल से कोई भी डिमोरलाइज मत हो। आतिश सर को मिलना है तो गुरुवार को आना है, आपको कल बताऊंगा कौन सा टाइम में आतिश सर को मिलना है। क्लियर? Sure, sir. Clear. मैं मैसेज में छोड़ दूंगा, मैसेज में ग्रुप का मैसेज, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir.